Everyone, please open your book and pen. I know after this this sort of an announcements, it's difficult to concentrate, but still we'll have to. Shall I? Okay, thank you so much. Let's move ahead. Projector screen is visible, readable properly. Good. Okay. So we have got one question in front of us. Till now, we have seen quite a few capital budgeting techniques. Capital budgeting techniques are used to evaluate a project, yes or no, whether to invest in a project or not, whether the polo forest would be, 3,000 rupee worth or not, is a capital investment. Evaluation has to be done, yes or no? Now, similarly, in the same lines, we have got various capital budgeting techniques which guides us that whether that investment is worth enough to do or not. So we got the payback period, which gives us the answer in time frame. Then we got net present value, which gives us the answer in absolute amount. Then we got accounting rate of return, ARR. So then I guess in the last session, we had come up with the IRR as well, right? Internal rate of return, which is also regarded as the actual rate of return we have got. Am I sounding clear? So while finding the NPV, there were some question raised कि सर तो एक्चुअल रिटर्न कहाँ पे है, वो तो कहीं पे बताओ, एक्चुअल रिटर्न हमने प्रोजेक्ट में कितना रिसीव किया है वो तो जरा सा बता दीजिए. तो वो जो एक्चुअल रिटर्न है उसे ही हम कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. Now internal rate of return was found in the last question. Today we have got one more question. So all those who couldn't attend the last one, please focus over here. Let's start reading the question and then we'll get to know that how to solve it. Mr. Harshil Mehta, who is a hypothetical brother of Mr. Harshad Mehta, wants to build one software named Scam 1992, which can generate arbitrage opportunities in the fraction of seconds. सर ये arbitrage opportunity क्या होती है? Basically we take the advantage of the difference in prices among the various markets. That's basically a arbitrage opportunity. हम यहाँ से जा रहे थे, बेड़ी पे रुके, बैंगन का भाव पूछा 20 रुपए का 1 kg. अचानक से हमारे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि भाई रैया के मार्केट के अंदर तो बैंगन का 30 रुपए का kg मिलता है. तो मैंने मेरी बहन पड़ी या तो फिर मेरा जो भाई बहन दोस्त है वे सबको पूछा, तेरे पास 20 रुपए है? तो उसने दिया. मैंने 1 किलो वहां से बैंगन परचेस कर लिया. रैया पे जाके उसी बैंगन को 20 में से कितने में सेल कर दिया? 30 रुपए में सेल कर दिया, क्योंकि राइट नाउ द प्राइस एट मार्केट ऑफ रैया इज 30 रुपी. दैट्स एन आर्बिट्राज. आर्बिट्राज माने कि वी टेक द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस इन टू डिफरेंट मार्केट्स और इन टू डिफरेंट टाइम जोन्स विदाउट इनकरिंग मच ऑफ एन इन्वेस्टमेंट. आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उस बहन से पास से 20 रुपए मांगे, रैया सर्कल पे 20 रुपए वापस दे दिए. क्या वो मना भी नहीं करेगी? 2 मिनट के अंदर, है कि नहीं? अभी जाके 10 मिनट के अंदर तो पैसे वापस दे देना है. तो स्टॉक मार्केट में भी वैसा होता है. कई बार आप NSE पे परचेस करने जाते हो कोई शेयर, तो इतने में मिलता है, BSE पे कुछ अलग भाव पे मिलता है. तो एक जगह पे जहाँ पे लेस भाव है वहां पे परचेस कर दिया, जहाँ पे ज्यादा भाव है उधर जाके सेल कर दिया. इसे कहते हैं आर्बिट्राज. Because of the fact that we have got very advanced systems nowadays, these arbitrage opportunities do not arise much now, but still in the currency and the futures market, the arbitrage opportunities are still present, plenty. तो ये भाई सबको इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, इसका सम के साथ कोई भी लेना देना नहीं था. आर्बिट्राज वर्ड आया ना, इसलिए समझाया कि उसका मतलब क्या है. यस डियर. See, both the markets functions independently. Demand and supply of both the markets may be different. Say you are going to buy one product at DMart. Possibly at Reliance store the price would be different. Yes or no? तो ये जो NSE और BSE है ना, वो 2 टाइप की मार्केट है. एक रिलायंस मॉल है, दूसरा DMart है. तो दोनों जगह पे प्राइस कम हो ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती?
लेकिन अगर बहुत ज्यादा कम ऊपर नीचे होगी प्राइसेस तो क्या होगा कि फिर हर कोई आइडेंटिफाई करेगा ये अपॉर्चुनिटी। तो जहां पे प्राइस कम है वहां पे लोग परचेस करेंगे, जहां पे प्राइस ज्यादा है वहां पे लोग सेल करेंगे। तो जो सेल करने वाली प्राइसेस है वो नीचे आएगी, जहां पे आप परचेस कर रहे हो वो प्राइसेस ऊपर आ जाएगी। तो वैसे ही बैलेंस स्ट्राइक ऑफ हो ही जाना है तुरंत ही। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है ना, चंदाराणा साहब, उनकी कंपनी का आर्बिट्राज में बहुत बड़ा नाम है भाई। चंदा राणा आर्बिट्राज में उनका बहुत बड़ा नाम है। बाहर लोग उनके क्लाइंट्स मतलब अच्छे अच्छे हैं। एनीवे लेट्स मूव अहेड। Mr. Harshil Mehta wants to build, अच्छा वो तो हो गया। The software is so advanced in nature that it will take 3 years for the development. अच्छा कुछ कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं भैया सेफ वगैरह 4-4 5-5 साल सिर्फ इंस्टॉलेशन चलते हैं उनके। He will spend following amounts on a yearly basis at the end of each year to build this software. 20 lakhs, 25 lakhs and 30 lakhs for initial 3 years. Yes or no? Sounding clear? The cash inflows are expected as below for the next 5 years. 15, 25, 30, 35 and 40. Find the net present value and the profitability index of the project. If the required rate of return is 15% for initial 5 years and 18% for next 3 years. अभी तक जो एनपीवी के क्वेश्चंस देखे थे ना उसमें एक कांस्टेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न थी, ये मतलब पूरे लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट में 12% एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इस वाले के अंदर दो पार्ट में, पहले हम 15% एक्सपेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट से, फिर हम कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट करते हैं 18%। ऑल्सो फाइंड द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा यहाँ पे तो हम थे लास्ट सेशन में, आईआरआर में कितने लोग प्रेजेंट नहीं थे? अरे बाप रे बहुत बड़ा लोट है मेरे सामने। ठीक है तो आईआरआर इज एज गुड एज न्यू फॉर यू राइट। एनीवे आई विल बी गिविंग यू द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट नाउ। Say how we were interpreting the NPV. If the NPV was positive, we were saying that our required rate of return is satisfied. Yes or no? In other words, we used to also conclude like my actual return is more than required rate of return. Am I sounding clear? If the NPV was negative, we used to say that my required rate of return is not satisfied, hence I should reject the project. And in other words, the same can be interpreted like my actual rate of return is lesser than required rate of return. Now from this conclusion only the next method is derived. I can comfortably say that if my NPV is 0, exactly 0, not positive, not negative, that means my actual rate of return is required rate of return. Both are same, yes or no? That means my required rate of return is exactly satisfied. है क्या नहीं? तो मेरा एक्चुअल भी सेम, एक्चुअल और रिक्वायर्ड दोनों सेम हो गया, वो अपन एनपीवी 0 को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब यहां से एक नया मेथड आया, कोई बोला कि भाई तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है क्या तुम्हारा? तुमने प्रोजेक्ट में से कितना कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न निकाला? भाई अगर कल जाके कंपेयर करना हुआ कि म्यूचुअल फंड 15% दे रहा है तो मैं कंपेयर कैसे करूं कि ये 15% में पैसा डालूं कि मेरे ये बिजनेस में पैसा डालूं जो मेरे को 15% से ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है? तो इसके लिए हमें रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो उसे कहते हैं आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने क्या फिर फाइंड किया था मालूम है? हम है ना ऐसे दो रेट फाइंड करेंगे। एक तो पहला रेट जिसमें एनपीवी है वो पॉजिटिव आ जाए, और एक दूसरा रेट जिसमें एनपीवी है वो नेगेटिव आ जाए। अब ये तो पूरा गेस वर्क है, हमें मालूम नहीं है कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि नहीं। तो अपन गेस से शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, 10% अगर अपन एक्सपेक्ट करते हैं ना तो फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आता जरा देख लीजिए। अच्छा फिर अगर वो 0 के आजू बाजू में नहीं आया तो फिर हम कुछ चेंज करेंगे उसके अंदर, 5% ऊपर नीचे करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई दूसरे रेट पे एनपीवी कहां पे आता है। तो वंस just a minute, let me complete. So once you get these two things, at one rate the NPV should be positive and at another rate the NPV shall be negative. Once you get these two rates,
then the IRR interpolation mathematics can be used. A bit of a mathematics will be there, but nothing to be worried about. IRR का ऐसा कुछ फॉर्मूला आता था, R1 प्लस NPV एट R1. R1 का मतलब होता है कि रेट 1, जो अपन ने पहला वाला रेट अज्यूम करके रखा है ना, वो वाला. लेकिन इस फॉर्मूला यूज करने से पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहली, एक रेट पे एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे रेट पे एनपीवी नेगेटिव होना चाहिए. इन डिनोमिनेटर वी विल हैव एनपीवी एट R1 माइनस एनपीवी एट R2 multiplied by R2 minus R1. That was the formula to get the exact rate of return. अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया? मुझे एटलीस्ट ये तो मालूम पड़ गया. समझ लो मेरा 10% पे एनपीवी आता है पॉजिटिव और 15% पे एनपीवी आता है नेगेटिव. तो ये मालूम पड़ गया कि मेरा एक्चुअल रेट है वो इन दोनों के बीच में है, 10 और 15 के बीच में है कि नहीं? क्योंकि एक पे एनपीवी नेगेटिव आता है, एक पे एनपीवी पॉजिटिव आता है. एनपीवी पॉजिटिव आया मतलब कि मेरा जो एक्चुअल रेट है वो 10 से ज्यादा है. एनपीवी नेगेटिव आया 15 पे, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एक्चुअल रेट है वो 15 से कम है. तो दोनों के बीच में कहीं पे है. तो दोनों के बीच में अगर कहीं पे है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं. हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कौन आया फिर मदद करने? मैथमेटिक्स आ गया. वो बोला कोई बात नहीं, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है इंटरपोलेशन का, तुम यूज कर लो, हो जाएगा तुम्हारा, कोई बात नहीं. तुम सिर्फ मेरे को दो एनपीवी दो रेट पे, एक में एनपीवी नेगेटिव, दूसरे में एनपीवी पॉजिटिव. तो फिर उसने ऐसा इंटरपोलेशन करके दिखाया हमें. तो लास्ट सेशन में अपन ने इसका एक क्वेश्चन किया था. तो जो लोग नहीं थे उनको लिए थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू. इज इट क्लियर? पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता फिर, क्योंकि पूरा लेक्चर चला जाएगा उसमें. तो अब अपन दो रेट फाइंड करेंगे. Yes dear, someone was asking me from here. Yes dear, someone was asking from here and I am here. Yes please. No, nothing sir. हो गया बेटा? क्लियर हो गया? Yes sir. अच्छा हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे को कंप्लीट होने दो, तो आपके कोई भी डाउट्स है ना मीनवाइल ही खत्म हो जाते हैं. आगे बढ़े क्वेश्चन में? पक्का? एकदम श्योर? अभी भी मुंह फुला के बैठे हुए जैसे मैंने उनका ब्रेक ले लिया. बोलो, ब्रेक पहले था, अब तो सेशन है. ये 11:40 से सेशन अब हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर अभी भी लोग मेरे को जवाब नहीं दे रहे. उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने उनका ब्रेक ले लिया. बोलो. अच्छा आगे बढ़ो. अब यहां से गेस वर्क शुरू करना है. तो पहला हम गेस करेंगे कि 10%. कितना परसेंटेज? ये कहां से आया? ऐसा मन मर्जी? हाँ मन मर्जी ही है. 10% हम सब शुरू करेंगे क्योंकि फिर हर कोई अलग अलग गेस करेगा ना. फिर ये तो 8 से शुरू करेगी, वो तो 12 से, वो 15 से. तो फिर हर एक के आंसर कुछ अलग अलग आएंगे और कंपेरेबिलिटी भी नहीं रहेगी. एक यूनिफॉर्म कैलकुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अपन किससे शुरू करेंगे? 10. चलो भाई एनपीवी शुरू करो फाइंड करना. रेट एनपीवी एट 10%. पार्ट 1, नेट प्रेजेंट वैल्यू का वॉइच फॉर्मूला भैया, वॉइच यार. कैश फ्लोस. अब मैं है ना आज एक्सेल यूज करने वाला हूँ. क्या यूज करने वाला हूँ? वो आउटफ्लो है ना बेटा, इसलिए पैसा खर्च किया, समझे? और ये जो चौथे साल से हमें पैसा मिल रहा है ना, उसको इधर नीचे लिख देते हैं. तो एक्सेल माइनस वाले को आउटफ्लो ले लेगा, प्लस वाले को इनफ्लो ले लेगा. तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ कैश फ्लो. हम भी स्मार्ट है, आउटफ्लो निकाल दिया. क्या लिखा? कैश फ्लो. फ्लो कौन से भी साइड हो, ऊपर हो कि नीचे हो? अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर से. अच्छा, डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन से रेट से? 10% से, है कि नहीं? ये सब सब्जेक्ट में है ना एक पीछे का एक प्रीवियस बर्डन होता है. अकाउंटिंग, फाइनेंस,
फिर कोई एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें पीछे का बर्डन लेके चलना पड़ता है। ऐसा नया सब्जेक्ट, नया कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब वो अकाउंट, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से नहीं समझा तो फिर पूरा तीसरा मॉड्यूल गया। तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसके कारण है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में धीरे धीरे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये अकाउंटिंग वाले भी फेस करते हैं। मेरे को रोना नहीं चाहिए क्योंकि बाकी जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है हर कोई ये फेस करता है। 1 डिवाइडेड बाय, मेरे को भी मन होता है कभी कभी ऐसे थियोरेटिकल वाले सब्जेक्ट ले लो, 4-5 पॉइंट वैसे मस्त मस्त डिस्कस करके एक्टिविटी करके निकल जाए, पर ये 10% है ना। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, so I'm doing over here 1 divided by 1.10 raised to 1। मेरे पास तो रिलेटिव रेफरेंस है इधर एक्सेल में, देखो आ गया कि नहीं। ऐसा हर बार करने की जरूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ उधर जाके डबल क्लिक करूंगा, मेरे पास तो डिस्काउंटिंग फैक्टर की लाइन लग जाएगी। क्या लग जाएगी? लाइन लग जाएगी हैं। डिस्काउंट नहीं, मतलब डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है बेटा कि अभी की वैल्यू कितनी। ये वो मार्केटिंग वाला डिस्काउंट नहीं, प्रोडक्ट वाला कि 100 रुपए में 5 का डिस्काउंट दे दिया तो 95 पे सेल किया, ये डिस्काउंट नहीं है। कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है तो वो फाइंड करने के लिए अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। बता दो। हाँ, वैल्यूएशन, मतलब समझ लो। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर का एक सिंपल सा मतलब बताओ। और देखो, तुम्हारा 1 रुपया आज है, 1 रुपया अगर तुम्हें समझ लो 8वें साल में मिलता है तो उसकी आज के दिन पे वैल्यू कितनी है मालूम है? 0.4665। अगर तुम 10% का इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करते हो तो मतलब 1 रुपया तुम 8वें साल में रिसीव करोगे ना, तो उसका अभी वैल्यू कितना है? 0.4665। समझे कि नहीं समझे? हाँ, 50 पैसे ही है अभी के। तो इतना ये है ना, टाइम के कारण पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो अपन यहाँ पे इन्फ्लेशन को काउंट नहीं कर रहे, अपन इधर एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है हमें कि भाई 10% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई कितना है, ठीक है। तो हमें मिलेगा इधर, क्या मिलेगा? क्या मिलता है हमें? पी वी। अच्छा, दूसरा वाला कैसे आया? रेज टू 2। तीसरे वाले में रेज टू 3 आएगा। वैसे वैसे डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करते रहना है। सादे वाले के अंदर तो अपन इक्वल टू प्रेस करते जाते थे, है कि नहीं? 1 डिवाइडेड बाय 1.10, कीप प्रेसिंग इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो माइनस वाले है वो आउटफ्लो है, प्लस वाले है वो इनफ्लो है। तो सबका टोटल कर दूंगा तो मुझे एनपीवी डायरेक्टली मिल जाएगा, है कि नहीं? पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो लोग कैलकुलेटर में कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 रेज टू 1, पहले में डिस्काउंट फैक्टर, दूसरे में 1 डिवाइड बाई 1.12 रेज टू 2। ऐसे हर एक साल में आपको करते जाने बेटा। और सादे में कर रहे हो ना तो बहुत इजी है डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करना। हाँ, पर ईयर का है, नहीं पर ईयर है। अच्छा, ये जो इनफ्लोज हो रहे हैं ना वो चौथे साल से हो रहे हैं बेटा, तो इसलिए वहां पे चौथे साल का डिस्काउंटिंग लगाया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? 0.6830 लगाया है, क्योंकि वो इनफ्लो कौन से साल में हो रहा है? 4th ईयर में, इसलिए 4 साल का डिस्काउंटिंग। समझे कि नहीं? पक्का? ओके, सबका टोटल क्या आता है जरा से देख लीजिए, ये लास्ट सेशन में नहीं थे ना, कोई बात नहीं। तो एनपीवी आता है अपना 17,94,086। दिस इज माय नेट प्रेजेंट वैल्यू। पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ।
सभी को एक ही टेबल में लिख लिया, तो दोनों को अलग अलग से बनाना नहीं, इनफ्लो और आउटफ्लो का, है कि नहीं? पक्का? क्योंकि लोग मेरे को इतना अटेंशन से सुनते होते हैं, फिर मैं पूछता हूँ कि पक्का कि नहीं, तो बोला वो आंसर नहीं देना है। आगे बढ़ो। अच्छा, मैंने क्या बताया कि दो रेट होने चाहिए, एक रेट पे एनपीवी पॉजिटिव, दूसरे रेट पे एनपीवी नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला तो हो गया, अब नेगेटिव वाला, अब नेगेटिव अगर एनपीवी चाहिए तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कम होना चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर कम करना है इनफ्लो का, तो फिर हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कितने से बढ़ाए, तो हर कोई अपने अपने से बढ़ाएगा। तो अपन ने उसमें भी एक स्टैंडर्ड रूल कर दिया कि भाई 5 से बढ़ाएंगे, कितने से? 5, तो हर कोई का आंसर सेम आ जाए। तो अब वैसा का वैसा सेम कैलकुलेशन, लेकिन कौन से रेट से? 15%। चलो शुरू हो जाओ भैया, चल गुरु हो जा शुरू। पार्ट 2, एनपीवी फाइंड करना है वापस, लेकिन कौन से रेट से? 15% से। तो मैं तो इधर कॉपी करके पेस्ट कर लूंगा, लेकिन दैट लग्जरी इज नॉट अवेलेबल टू अस, मेरे लिए यू। अब डिस्काउंट फैक्टर फाइंड करेंगे। सिर्फ एक ही चेंज आएगा, वो है डिस्काउंटिंग फैक्टर में। इंस्टेड ऑफ 10 वी विल टेक 15। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाइए, हर साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल जाएगा हमें। 0.4 तक लेंगे, 8695, वेरी नाइस स्मिथ। और एक बार इक्वल टू प्रेस करो, क्या? 96। और एक बार इक्वल टू प्रेस करो, नहीं आ रहा है? तो आपको है ना फिर मेन्यू ऐसे में करना पड़ेगा। तो फिर आपको 1 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू 2, आप में तुम्हारे में आएगा, कुछ कुछ में नहीं आएगा ना, कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर डिपेंड करता है। सादे वाले में ये लग्जरी है, दूसरे में नहीं है। कई कई बार सादे वाले में भी फायदा हो जाता है कि नहीं? हमने बोला मसाला डोसा, तो मसाला कुछ दिया ही नहीं, उससे अच्छा तो सादा ले लेते। आगे बढ़ो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सिर्फ चित्र दर्शन से कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, 1.15 डिस्काउंटिंग फैक्टर रेज टू क्या आ जाएगा? 1। तो मैं है ना इधर लिंक दे देता हूँ, ठीक है, 1 का, फिर एक्सेल अपने हिसाब से लेता जाएगा आगे आगे आगे। हाँ, सो सेकेंड वाले में रेज टू 2। આવે છે સ્મિત? વેરી નાઇસ। અરે વાહ ભાઈ ભાઈ, વરસ સરસ। હા, એટલે જ ને, સાદું વાળું હોય તો વધારે સારું। देखो, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि शुरू में अगर साइंटिफिक होता तो इजी हो जाता, इस वाले क्वेश्चंस में अगर सादा है तो इजी हो जाएगा। तो हम क्या दो दो कैलकुलेटर ले? एक के भी धड़े नहीं है और आप बोल रहे हो कि दो लो। ये क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं, कनेक्टेड है। हाँ, चलो ऑनलाइन बच्चे बेटा समझ रहे हैं ना सब? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आ रहा तो जरा सब बता दीजिए, ठीक है? सर कोई अंतर्यामी नहीं है। दर्श इज सेइंग यस, मिस्टर केविन, मिस्टर मिलन, मिस प्रिया, ये बच्चे लास्ट टाइम थे ना इसलिए।
अच्छा, अब तो डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है कैश फ्लो से। या मेरे लिए तो ये है बहुत इजी। क्रॉस वेरीफाई जरा सा कर दीजिए आंसर्स को। मेरा तो क्रॉस वेरीफाई मेरा नहीं करना है, आपका करना है। तो करो ना, मैं नहीं करना है मल्टीप्लाई। बाप रे, बोलो ना मल्टीप्लाई भी नहीं करना है लोगों को। मैं ना आप सीधा आंसर कभी दूंगा ही नहीं ऐसा, फिर लोग कटते नहीं हैं हैं। अब समझ में आ रहा था मैं क्यों पेन से लिखता हूं? आ रहा है समझ में? स्टेप बाय स्टेप ऐसे पेन घिसता जाता हूं आपके साथ। सब कुछ आता है, आंसर भी मालूम होता है, क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप सब मालूम होता है, फिर भी करना पड़ता है। बोलो पेपर, अब पेपर का डिस्कशन हो चुका है, बाद में करते हैं स्मित। मैं बहुत सारे लोगों को एक्सप्लेन करके थक चुका हूँ पेपर के बारे में। मैं बताता हूँ पक्का 5 मिनट। हाँ हाँ, मैं ये लेक्चर के बाद में बात करते हैं। ये फिर से वो उधर से जग जाएंगे पेपर। अच्छा सुन, जैसे ही उनके कान में पेपर वर्ड आता है ना, तो फिर अचानक से आनंद के उमड़ के अंदर से ऊपर उठने लगते हैं। मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी दिखाओ, मेरे को भी दिखाओ। याद करवा दिया। आगे बढ़ू? कितना एनपीवी? वेरी नाइस। 4,18,000। देख लीजिए जरा, SUM ओपन द ब्रैकेट। हाँ भाई 481 418,902, थोड़ा सा फर्क आएगा, कोई बात नहीं। आपने 4 डिजिट, मेरा एक्यूरेट है ज्यादा। तो ये भी पॉजिटिव में आया सर एनपीवी। हमें कौन सा चाहिए था? तो और एक बार करेंगे इंक्रीज। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक इंटरपोलेशन अप्लाई। फिर फासले अगर बहुत बढ़ जाएंगे ना, फिर एक्यूरेसी चली जाती है। तो कोई बोलेगा मैं तो है ना 5 से 50 दोनों ही करूंगा भाई, तो फिर आंसर भी वैसे ही आएगा। जितना अगर कम होगा ना फासला, उतना आपका एक्यूरेट आंसर आता है। इसलिए 20 ले लेते हैं ना, कोई बात नहीं। 17 से फिर नहीं आएगा तो फिर करना पड़ेगा। तो एक काम करते 20 ले लेते हैं, ठीक है। चलो जाते सेम कैलकुलेशन भैया, सेम टू सेम, वही का वही वही। पार्ट नंबर 3, एनपीवी एट 20%। तो डिस्काउंट फैक्टर स्मिथ अब 15 नहीं, अब क्या करोगे नीचे 1.20। वेरी गुड। और रेस टू में भूल नहीं करनी है, फिर दूसरे में रेस टू 2, तीसरे में रेस टू 3, वैसे। फोन में आ रहा है, सुपर। चलो मैं तो सीधा इधर रेफरेंस ही दे रहा हूँ। मैं अगर IRR पूछूंगा भी तो भी आपके दो से ज्यादा एनपीवी के कैलकुलेशन नहीं होंगे, उतने में हो जाएगा। मैं सॉल्व करके ही देता हूँ क्वेश्चन। इसका भी मेरे को मालूम था कि 20% में जाना पड़ेगा, फिर भी 15 करवाया था, बिकॉज आई वांटेड दैट प्रोसीजर टू गेट फॉलोड। बता रहा हूँ, आंसर दे दूं मैं तुम्हें तुम लोग करो, मैं नहीं करने वाला। फिर तुम लोग सिर्फ लिख ही लेते हो, मैं
एक्सेल रोएगा फिर, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ, लोग सीधा मेरे से कॉपी कर रहे हैं इधर। क्या हो गया? जादू। माइनस में है भाई, सही बात है, ये सही है। स्मिथ इतना फास्ट कैसे हो गया है क्या? क्या बात है? कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर। तो सर आता है हमारा टोटल SUM, ओपन द ब्रैकेट, we have got minus 499063. Am I sounding clear? आगे बढ़ू? कोई बात नहीं, चलो। हाँ कोई बात नहीं, लिख लो फिर। So 1 minute uninterrupted given to stare and copy. उसमें भी सीधा NPV लिख रहा है, बोलो। करो यार, ऐसे मत करो, मैं इसीलिए एक्सेल में नहीं कर रहा था, मेरे को मालूम था इसमें बहुत जल्दी हो जाता, फिर मैं आपके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर पाता हूँ। हाँ तो ये करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन 8 मार्क का हो सकता है, सिर्फ IRR 8 मार्क का, फिर NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये दोनों को गिन के जाओ तो फिर 16 मार्क का होगा। सिर्फ IRR पूछा जाएगा ना तो फिर 8 मार्क से ज्यादा नहीं दे सकते उसमें। आगे बढ़े? अभी भी नहीं, कोई बात नहीं। एन्युटी का फॉर्मूला लगाए हो गए उसमें स्मिथ। हाँ इंटरेस्ट वाला, ठीक है मैं बता दूंगा। ऐसा कोई डिससेटिस्फेक्शन हो तो प्रॉब्लम नहीं है अपने को दिखाने, देख लीजिए। कोई बात नहीं, कुछ होगा। आगे बढ़े? अभी भी नहीं। Some people are habituated to say no. I don't know why. हैं? 499 तुम्हारा थोड़ा सा अलग आ रहा है ना, 400-500 रुपए का। ठीक है कोई बात नहीं, चलता है चलता है। एक्सेल थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है ना, इसलिए उसके थोड़ा सा और अच्छे आंसर आते हैं। अच्छा ये अगर टेबल होगा, वो उसका जेंडर अगर फीमेल होगा तो क्या लग जाएगा उसको? बुरा। आईलाइनर कर देते हैं, हो गई। Okay, let's focus over here again, my friends. We are there into the IRR. I told you that at one rate we require the positive NPV, at another rate we require the negative NPV. Once these two conditions are satisfied, we may use the interpolation formula. Am I sounding clear? A bit of an approximated answer would be there. The interpolation formula looks like this: IRR equals to R1 plus NPV at R1 divided by NPV at R1 minus NPV at R2 multiplied by R2 minus R1. ये फॉर्मूला एकदम रट लेना है भैया, रट लेना है।
और इधर डेसिमल में लिखना है, कोई लोग इधर 10 लिख देते हैं। बोलो 10 का दम, 10 का दम आता था भाई, 2 नहीं। तो पहला वाला रेट कौन सा लेंगे जहां पे एनपीवी पॉजिटिव हो? सो वी हैव गॉट 2 रेट्स where NPV is positive. At 10% to the NPV is positive, and at 15% to the NPV is positive. So which one we should prefer? 15, क्योंकि जितने फासले कम उतनी एक्यूरेसी ज्यादा। तो 15 और 20 का बीच का जो फर्क है ना वो कम है, इसलिए 15 और 20 में जाएंगे rather than 10 और 20। ले सकते हैं लेकिन फिर आंसर थोड़ा सा ज्यादा। 3 रेट तुम फाइंड करते हो तो फिर 2 नजदीक वाले ही तुम्हें लेने हैं, ये रूल बना दो, ठीक है? सही नहीं आएगा, फर्क पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन है ये। फिर हाँ, पूरे मार्क्स नहीं जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम एक्यूरेट कर रहे हैं तो फिर क्यों वही ना फॉलो करें। 0.15 यहाँ पे लोग क्या लिख देते हैं? 15। वाह बेटे वाह। एनपीवी एट R1 कितना होगा? 418902.93। 902.93, very nice. Here again NPV at R1 418,902.93 माइनस और R2 पे जो NPV आ रहा है ना, दया जरा सा देखो, दरवाजा तोड़ दो दया, कुछ गड़बड़ लग रही है वहां पे, और एक माइनस है कि नहीं? तो दोनों क्या हो जाएंगे? लेकिन डायरेक्टली प्लस नहीं करना, फिर कोई सोचेगा ये प्लस है, ये तो माइनस, प्लस कैसे हो गया? तो अपन पहले माइनस एक बार लिखते हैं। तो आता है 499,063, वेरी नाइस, मल्टीप्लाइड बाय R2 है 0.20 माइनस 0.15। ये ब्रैकेट को निकाल देते हैं वरना फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स, यहाँ पे फंसते हैं बच्चे। पहले एडिशन कर देना है, पहले डिवीजन करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है? मैं क्या करूँ बताओ? पहले डिवीजन होता है कि नहीं? कोई लोग पहले ऐड कर देते हैं और लोग कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मैंने पूछा तेरे एफएम में इतने मार्क्स कम क्यों है? तो बोले कोई नए से आए हैं ना, तो नहीं समझ में आ रहा। मैं तो कौन सा सब्जेक्ट? बोला एफएम, तो मैं ही लेता हूँ वो। नया सर, मैं नया नहीं हूँ भाई। आगे बढ़ू। So equals to 0.15 plus 418,902.93 divided by, अच्छा नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 917,966.41। वेरी नाइस, मल्टीप्लाइड बाय 0.05। अच्छा 0.20 माइनस 0.15, एक जन ने लिखा था 0.5, 50%। 0.5 कितना परसेंटेज होता है? 50%। ये छोटी छोटी गलतियां करके इतना कैलकुलेशन मस्त करते हैं और ये मिस्टेक करके आ जाते हैं। बताओ 0.05, सो 0.15 प्लस, अब मल्टीप्लाई पहले कि डिवीजन पहले? डिवीजन 0.4563। वेरी नाइस, 0.4563 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। अब पहले एडिशन की मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सर 0.03। नो सर, इट्स 0.0228। 228 क्लियर है सर? यस डियर, इट्स 0.0228 सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब उसको ऐड करना है,
क्या आता है 0.1728. so that will be 17.28%. क्लियर है? कोई भी डाउट अभी तक? पक्का? एक्सेल में एक फॉर्मूला है आईआरआर करके, क्या है बताओ? पक्का? जरा सा देखिए, हाँ 20 सेकंड का फॉर्मूला, इतना कैलकुलेशन हमारा 16 मार्क का। कितने मार्क का कैलकुलेशन हमारा? 16 मार्क का। हाँ, और एक्सेल कितने सेकंड में आंसर देता है? 16 सेकंड में। तो अपन क्या करते हैं मालूम है? जैसे मेरे पास कैश फ्लो होता है तो नेगेटिव कैश फ्लो को मैं कैश आउटफ्लो गिनता हूं, पॉजिटिव को इनफ्लो गिनते हैं। सो इक्वल्स टू आईआरआर ओपन अ ब्रैकेट, एक ही स्टेप करना है। कितना? जितने भी वैल्यूज है ना सबको सिलेक्ट कर लो, पहले से लेके एंड वाले। क्लोजिंग द ब्रैकेट, प्रेसिंग एंटर। हमारा अप्रोक्सीमेटेड है, ये गलत नहीं है क्योंकि हमने इंटरपोलेशन लगाया है। ठीक है? अगर हमारा रेट ऐसा होता है ना कि 16 और 18 ये दोनों के बीच में, तो फिर हम भी ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। हाँ, ये लेके काउंट करोगे ना तो एनपीवी क्या आ जाएगा? 0 0। वेरी नाइस मिस्टर स्मिथ, आई लाइक्ड इट, सुपर। लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक खत्म। आईआरआर एक नहीं था, देखो उधर और भी है। लोग कुछ भी मतलब क्या पैकिंग करने लग गए, बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। अपन एनपीवी और पीआई कब फाइंड करेंगे? नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? ये आईआरआर मेरे को एक्सप्लेन करवाने में समय चला गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलता है चलता है बेटू। कई बार जाने देना होता है, बच्चे लोग अपना बच्चे लोग है वो, ठीक है? थैंक यू सो मच। उधर अपनी अटेंडेंस चिपका के तो निकल बेटू जल्दी से, पतली गली से कलची मार, चल अड़ा सावन की गड़ा, जल्दी से बत्ती बुझा, निकल इधर से, तू बस तेरी वाट देख रही बेटू। सर वो वाला डायलॉग बोलो, मेरा बच्चा है तू। फिर वो टाइगर नहीं है भाई हमारे पास अभी। वो क्लास में है ना, सब आपके बच्चे। क्या बोल रही है अंजलि? कुछ पूछ रही थी। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, यू मे डिस्पर्स फ्रॉम द सेशन नाउ, बाय बाय, टेक केयर।